and that is about metal semiconductor junction. Metal semiconductor junction, and it is also denoted by MS junction. MS junction. In the previous class, we discussed about the PN junction, right? We discussed about the PN junction, and what we did in PN junction, we take one P type and one N type like this. And we discussed the forward biasing arrangement, reverse biasing arrangement, and then its VI characteristics. But what is PN junction? It is semiconductor junction. In this case, a junction is formed when P-type semiconducting material comes in contact to the N-type semiconducting material. So when they are coming in contact to each other, तो एक जो बाउंड्री या इंटरफेस क्रिएट होगा उसको हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, राइट. तो अब यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन. तो यहाँ पे हमें एक मेटल लेना है और दूसरा हमें क्या लेना है, सेमीकंडक्टर लेना है, एंड बोथ आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म अ बाउंड्री और इंटरफेस दैट इज कॉल्ड मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन. तो यहाँ पे इसकी जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, मेटल को, एंड देन इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया सेमीकंडक्टर को. Then a junction is formed here, and that junction is called MS junction. That junction is called MS junction. Here you can say close contact of. Here we take close contact of metal and semiconductor. तो अगर हम इन दोनों को क्लोज कांटेक्ट में लाएंगे तो अ जंक्शन इज फॉर्म, और यू कैन से एमएस जंक्शन इज फॉर्म. एमएस जंक्शन इज फॉर्म, राइट. So there are basically two types of junction will form when a metal is placed in contact with the semiconductor. Then two types of MS junction form. First is Schottky MS junction, Schottky junction, and second is ohmic junction. Right? So these are मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार रिपीट कर दो. These are the, just a minute. आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, रिपीट कर दो एक मिनट. अच्छा ठीक है, ओके. यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है वो कैसे फॉर्म होगा, जब एक मेटल को हम सेमीकंडक्टर के नियर बाय लेके आएंगे तो एक इंटरफेस क्रिएट होगा, एंड दैट इंटरफेस इज कॉल्ड मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन. नाउ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शंस आर टू टाइप. पहला टाइप है शॉटकी जंक्शन एंड सेकंड टाइप है ओमिक जंक्शन. ठीक है. तो अब व्हाट इज शॉटकी जंक्शन, शॉटकी जंक्शन कब बनेगा, एंड व्हेन अ ओमिक जंक्शन विल फॉर्म. तो उनकी फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन होगी. तो फॉर्मेशन ऑफ एमएस जंक्शन, बेसिकली जो हमारा एमएस जंक्शन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एमएस जंक्शन डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन. Depends upon work function. Work function को I am denoting with the symbol phi. It depends on the work function of material.
और यहाँ पे हमारे कौन कौन से मटेरियल है? फर्स्ट वी आर टेकिंग अ मेटल एंड सेकंड वी आर टेकिंग सेमीकंडक्टर. So these two types of junction will depend upon the work function of metal and work function of semiconductor, right? So if I denote F psi m is the work function of metal. This is an indication of work function of metal, and another psi sm semiconductor SC. That is a this is a work function of semiconductor. Here I used work function term. वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा जंक्शन फॉर्म होगा. तो वर्क फंक्शन को हमने किससे डिफाइन किया है? दैट इज फाई. तो फाई एस, इफ आई एम यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट एस सी, तो दिस इंडिकेट्स work function of a semiconductor, and if I use m in the subscript, then it means this it means work function of metal, right? So in the case of Schottky junction, work function of metal should be greater than the work function of semiconductor. This is a condition for the formation of Schottky junction, right? And if I talk for the ohmic junction, work function of semiconductor should be greater than work function of metal. These two are the necessary conditions for the formation of two different type of MS junction. First is Schottky junction and second is ohmic junction. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग कि ये किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मेशन ऑफ एमएस जंक्शन डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन ऑफ अ गिवन मटेरियल. अब कौन से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, किसका वर्क फंक्शन कम होगा? तो इन द केस ऑफ Schottky जंक्शन जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर. एंड इन द केस ऑफ ohmic junction, work function of semiconductor should be greater than the work function of metal. Then only we will say ki this is a formation of Schottky junction, or you can say this is a formation of ohmic junction, right? So now we will discuss in detail ki what is work function, how we can form Schottky junction, how we can form ohmic junction. So first we will start with the Schottky junction, and it is a kind of p-n junction. Schottky junction is more or less same to the p-n junction, and as we discussed in a p-n junction, that is forward biasing arrangement, reverse biasing arrangement. तो यहाँ पे भी Schottky junction में भी we will apply some external voltage to the Schottky junction, then it become forward bias Schottky junction or reverse bias Schottky junction, and then we will discuss its characteristics, the forward bias characteristics कैसी होती हैं, and what about the reverse bias characteristics, right? So first we will start with Schottky junction. Schottky MS junction. So here I will take a metal plus n-type semiconductor. You can also take p-type semiconductor because both are kind of semiconductor. तो यहाँ पे I will take an example of n-type semiconductor, and when both are connecting to each other, then they will form a Schottky MS junction, such that work function of metal should be greater than work function of semiconductor. Right, so now we will discuss this Schottky MS junction with the help of band diagram. तो सबसे पहले हम diagram बना रहे हैं. This is your
this is a band diagram of metal. This is a metal, and in the metal, you know, conduction band and valence band both overlap to each other. This is your valence band and this is your conduction band. There is no energy gap. They should overlap to each other. तो ये जो level होगा, this level is called Fermi energy level. This is a Fermi energy level in the case of matter. Fermi energy level is a level up to which all energy levels are completely filled. कि यहाँ पे सारी की सारी energy state इस level तक सभी की सभी energy states completely filled रहेंगी, and above this level all energy states are completely empty. So this is a definition of Fermi energy level. तो यहाँ पे ये हमने एक मेटल का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया एंड दिस इज अ फर्मी एनर्जी लेवल, राइट. अब हम बना रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम. तो दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज अ कंडक्शन बैंड, राइट. तो ये हमारा वैलेंस बैंड है एंड ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज अ एनर्जी गैप between the conduction band and valence band, right. तो ये हमारा जो एनर्जी होगा, इस लेवल की एनर्जी ईवी होती है और इसकी एनर्जी को हमने क्या कहा था, ईसी. व्हेन यू विल गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर जो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो व्हेन यू विल गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस टू प्रीवियस लास्ट वीक हमने डिस्कस किए होंगे शायद. तो यहाँ पे हमारा जो फर्मी लेवल कहाँ बनता है, नियर टू द कंडक्शन बैंड. पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो हमारा फर्मी लेवल कहाँ बना था, नियर टू द वैलेंस बैंड, बट इट इज अ एक्सेप्टर लेवल. तो यहाँ पे हमारा फर्मी लेवल कहाँ बना था, दिस इज अ फर्मी लेवल इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. हियर आई यूज टू टर्म EF and EFN. This is a Fermi level for metal and this is a Fermi level for N-type semiconductor. FN, Fermi level for N-type, right? तो यहाँ पे हमने फर्मी लेवल डिफाइन कर दिए बिकॉज वी नो कि फर्मी लेवल क्या होते हैं, अप टू दिस ऑल एनर्जी स्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड और अबव विच ऑल आर एम्प्टी. अब हमें बात करनी कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, क्योंकि हमें तो वर्क फंक्शन देखना है. वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन शुड बी इन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर. तो अब वर्क फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज वर्क फंक्शन. तो इट इज अ एनर्जी गैप बिटवीन फर्मी लेवल एंड वैक्यूम लेवल. फर्मी लेवल और वैक्यूम लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. व्हाट इज वैक्यूम लेवल, वैक्यूम लेवल मींस इसकी जो टॉप मोस्ट जो स्टेट होगी दैट इज कॉल्ड वैक्यूम लेवल, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम लेवल ये हो जाएगा. तो एनर्जी, दिस टर्म इज कॉल्ड वर्क फंक्शन इन द केस ऑफ मैटर. एंड इफ आई वुड लाइक टू डिनोट हियर, तो ये वैक्यूम लेवल और फर्मी लेवल हमारा ये है. सो दिस इज द वर्क फंक्शन इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर. तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और इसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है. डायग्राम में भी वो दिखना चाहिए. व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम of metal and semiconductor to indicate the formation of Schottky MS junction, तो कंडीशन क्या है कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर. तो वो हमें डायग्राम में भी दिखना चाहिए. तो डायग्राम, यू शुड ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस कि it should be
इट शुड बी लाइक इसका वैल्यू थोड़ा हमें ज्यादा विजुलाइज हो, इसका वैल्यू हमें थोड़ा सा कम दिखे। तो यहाँ से यू कैन सी कि जो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट। ये जो डायग्राम है, अभी हमारा जंक्शन बना नहीं है, अभी सिर्फ हमने एक मेटल लिया है और एक हमने क्या लिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, और हम शॉर्ट की एमएस जंक्शन हम बनाने वाले हैं। और शॉर्ट की एमएस जंक्शन कब बनेगा, जब वर्क फंक्शन मेटल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट। दिस इज द डायग्राम बिफोर द जंक्शन, बिफोर जंक्शन, कि ये फर्मी लेवल यहाँ पे पड़ा है, इसका वैल्यू कुछ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका वैल्यू यू कैन से कि इसका जो वैल्यू वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ आई से इट इज अ काइंड ऑफ वर्क फंक्शन, हमारा काइंड ऑफ एनर्जी गैप है, तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला और मैंने इसका वैल्यू क्या बोल दिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड व्हाट विल हैपन व्हेन अ जंक्शन इज फॉर्म, जब जंक्शन फॉर्म होगा तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दे ट्राई टू maintain a equilibrium. This is a necessary condition for the formation of the MS junction. What is the condition? Condition is that कि both Fermi level line up at equilibrium. This is a mandatory condition for the formation of MS junction. What I want to say here कि आपका एक फर्मी लेवल यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक आपका फर्मी लेवल यहाँ पे है और एक आपका फर्मी लेवल यहाँ पे है, ये तो मेटल के केस में है, एंड दिस इज अ फर्मी लेवल इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे आपका एमएस जंक्शन फॉर्म होगा तो बोथ फर्मी लेवल लाइन अप मतलब कि वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे at equilibrium when a junction is formed. When a junction is formed, कि जो हमने एक का फर्मी लेवल हमारा कम है, लोअर साइड पे पड़ा है, और एक का हमारा फर्मी लेवल अपर साइड पे है, तो बोथ फर्मी लेवल विल लाइन अप when a MS junction is formed. This is a mandatory condition for the formation of MS junction. राइट। तो हाउ इट विल हैपन, ऐसा कब होगा, कैसे होगा, तो लेट अस सी कि ये ऐसा कैसे होगा। तो ऑल ऑफ यू नो कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी ऐड pentavalent impurity, and pentavalent impurity means we have extra electrons, right? So electrons are present here because of the acceptor impurities. यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द कंडक्शन बैंड। In the case of n-type semiconductor के अंदर due to pentavalent impurities there are presence of electrons, free electrons inside the conduction band. All of you know this thing very well. So what will happen, जैसे आपका junction form होगा तो these electrons will move from semiconductor to here. There is a movement of electron from semiconductor to metal. This thing is very important. Next point यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूंगी, this is a key point. First point is very important here. Second point आपका ये कि फर्मी लेवल लाइन अप एट इक्विलिब्रियम. थर्ड पॉइंट यू कैन से कि आपका जो इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम n type semiconductor to the empty state of metal. Empty state of
above the Fermi level of matter. What I write here कि यहाँ पे क्या है, there are electrons और यहाँ पे एम्प्टी है, ये वाली स्टेट हमारी फर्मी लेवल से अब वो तो सारे की सारी एनर्जी स्टेट खाली पड़ी है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट विल हैपन व्हेन अ जंक्शन इज फॉर्म, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मेक अ मूवमेंट फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल. सेमीकंडक्टर से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने मूवमेंट किया टुवर्ड्स द मेटल. तो यू कैन से कि सेमीकंडक्टर से मूवमेंट हमारा किधर हो रहा है, टुवर्ड्स द मेटल. एक्चुअली अगर आपको एक जंक्शन समझ आ गया, शॉर्टकी जंक्शन, तो यू विल अंडरस्टैंड ओमिक जंक्शन वेरी वेल बिकॉज बोथ जंक्शन आर रिवर्स टू ईच अदर. जो चीजें यहाँ पे इधर से इधर आ रही है उसमें उधर से इधर जाएंगी, राइट? तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल. अगर आपको एक जंक्शन समझ आ गया तो सेकेंड जंक्शन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा मूवमेंट कहाँ से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल. और हमें क्या अचीव करना है, वी वांट टू अचीव दिस फर्मी लेवल इन अ सिंगल लाइन, कि हम दोनों के फर्मी लेवल को एक स्ट्रेट लाइन में लाना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे लोअर पे है और इधर हमारा किस पे है, अपर पे पड़ा है. तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गए, तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां से अपनी पोजीशन को लूज कर, अगर इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, अब ये इधर मूव हो गए और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की, राइट? व्हाट आई वांट टू से हियर कि जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स लीव्स पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर साइड. ये हमारा पॉजिटिव चार्ज किधर रह गया, सेमीकंडक्टर साइड की तरफ रह गया, और नेगेटिव चार्ज हमारा किधर क्रिएट हो गया, टुवर्ड्स द मेटल साइड, क्योंकि मेटल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा. तो व्हाट विल हैपन, this will form a depletion region. This will form a depletion region, जैसा हमने पीएन जंक्शन में भी पढ़ा था कि जब ये हमने पीएन जंक्शन में भी पढ़ा था, दिस थिंग वी आल्सो डिस्कस इन द पीएन जंक्शन, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था इस तरह से, तो इस तरह का एक रीजन क्रिएट हो गया था, मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दैट रीजन, एक रीजन फॉर्म हो गया था, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट डिप्लीशन रीजन के अंदर यू कैन से कि there is a formation of electric field. Electric field will be like this, from positive to negative. Electric field will be created. और एक आपका यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, that is a potential barrier. There is a formation of potential barrier that is negative to positive. That is called the potential barrier. यहीं पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, डिप्लीशन रीजन, और यहाँ पे आपका इधर नेगेटिव साइड है और इधर आपका पॉजिटिव साइड है, तो दिस इज अ पोटेंशियल बैरियर. पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा. तो अगर हम इसका डायग्राम अदर वे में इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो हाउ इट विल बी कि दिस इज योर मेटल,
ये हमारा मेटल है और ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर. This is up to this point, this is your metal and this is your semiconductor, n type semiconductor, right? तो what will happen कि यहाँ पे तो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है. तो ये जो रीजन होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. और इसके अंदर जो बैरियर हो जाएगा, दिस बैरियर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. पोटेंशियल बैरियर which will oppose the further movement of electron towards the matter. ये बैरियर है, बैरियर का मतलब काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. तो व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेंशियल बैरियर? इट विल अपोज पोटेंशियल बैरियर. इसको, इसका वोल्टेज मैंने V नोट बोल दिया है, जो हमने पीएन जंक्शन में भी यूज करता है. V नोट इज द पोटेंशियल बैरियर, voltage of the potential barrier, and what it will do, it will oppose further movement of electron towards the metal. क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, मेटल की तरफ जा रहे हैं. तो ये क्या करेगा, वो जो बैरियर क्रिएट हो गया है, इट विल अपोज, उनको रोकने की कोशिश करेगा कि वो फर्दर मूवमेंट ना हो पाए टुवर्ड्स द मेटल, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. Right? So now we will draw another diagram, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है कि we want to line up this Fermi level. हमें किसको लाइन अप करना है, फर्मी लेवल्स को लाइन अप करना है. हमें तो इन फर्मी लेवल्स को, जो आपके यहाँ पे जो फर्मी लेवल्स है, उनको सिंगल लाइन में लाना, देन ओनली यू विल सी ना कि जंक्शन विल फॉर्म, क्योंकि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, सॉरी एमएस जंक्शन, राइट. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन गया. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके जो ये बैंड है, ये आपका एनर्जी बैंड फॉर द मेटल एंड दिस इज द एनर्जी बैंड फॉर द सेमीकंडक्टर. तो इन ये जो बैंड, जो आपके बैंड है, एनर्जी बैंड, वो बैंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट आई वांट टू से हियर कि due to this electric field, due to the formation of electric field, due to formation of electric field, एनर्जी बैंड, जो आपके एनर्जी बैंड है, दे बिकम बैंड. उनके अंदर बैंडिंग हो जाएगी, बैंडिंग, एनर्जी बैंड बैंडिंग goes up in the direction of electric field, in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जो आपके बैंड है, वो बैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे. They will start to bend in the direction of electric field. So now we will see how it will happen.
अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि कैसे इनकी बैंडिंग होगी। दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि डायग्राम के अंदर किसको कम रखना है, किसको ज्यादा रखना है। तो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डायग्राम रॉन्ग बना दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन योर टॉपिक वेरी वेल, क्योंकि डायग्राम ही गलत हो गया तो यू बिकम कंफ्यूज। तो डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे नाउ वी विल शो द बेंडिंग। तो यहाँ पे ये तो डायग्राम है बिफोर द जंक्शन। बिफोर द जंक्शन तो हमारा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये हमारा एक्चुअल सिनारियो है। हमारा एक्चुअल सिनारियो बिफोर द जंक्शन क्या था, बिकॉज इसको हम एमएस जंक्शन नहीं बोलेंगे। एमएस जंक्शन की कंडीशन क्या है कि ये दोनों ये क्या होने चाहिए, प्रॉपरली लाइन अप होने चाहिए। तो इसके नीचे ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज बिफोर द जंक्शन। बिफोर जंक्शन, जब हमारा जंक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। एंड व्हेन जंक्शन इज फॉर्म, तो व्हाट यू कैन से, सबसे पहले आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, मींस दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ एफ एन और दिस इज फर्मी लेवल। तो इस डायग्राम में जो हम बनाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये फर्मी लेवल मेटल का है एंड दिस इज अ फर्मी लेवल ऑफ द सेमीकंडक्टर। दोनों हमारे एक ही लाइन में आ गए। जो पहले नीचे पड़ा था ये ऊपर था, तो नाउ दे आर लाइन अप, एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं एट इक्विलिब्रियम। तो नाउ हाउ वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम, इससे नीचे की जो स्टेट्स होंगी दे आर कंप्लीटली फिल्ड और इससे ऊपर की जो स्टेट्स होगी दे आर कंप्लीटली एम्प्टी। तो ये मैं जो दिखा रही हूँ, दिस इज अ इंडिकेशन कि दीज स्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज अ मैटर। ये हमारा, इसको थोड़ा छोटा दिखा देती हूँ मैं। दिस इज मैटर, ये हमारा क्या है, मेटल का केस है। Now we will draw for the semiconductor. तो in the semiconductor how you will draw, कि हमारा इधर ये हमारा कंडक्शन बैंड है and this is your valence band. मैम धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? नो मैम, आप दिख गया मैम। अभी क्लियर दिख रहा है? अभी भी मैम थोड़ा थोड़ा ब्लर है। अभी ठीक है मैम। वो थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा। ओके। तो यहाँ पे दिस इज योर, ये हमारा दिस इज अ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड, राइट, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैंड जो आपके एनर्जी बैंड है उनका बैंडिंग होगा। तो हाउ इट विल बी लाइक दिस, ये बैंड होके एक्सटेंड हो जाएंगे। इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं फॉर अ गुड डायग्राम, कि कैसे हम इसको दिखाएं। इधर थोड़ा पास में दिखा देते हैं इसको। तो इसकी बैंडिंग इस तरह से होगी। तो पहले आपका कंडक्शन बैंड इतना था और अब ये बैंड होके इस तरह से एक्सपेंड हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम इसको दिखाना चाहें,
लाइक दिस। तो यहाँ पे व्हाट आई वांट टू से हियर कि आपका पहले तो आपका दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। तो ये आपका यहां तक था। आपका इस तरह से था, और लेकिन उसकी जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट किया फ्रॉम हेयर टू हेयर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से व्हाट विल हैपन, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हेयर। इस रीजन में आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। तो ये हमारा ये जो रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये आपके जो ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे से यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसी डायरेक्शन में आपके जो बैंड है, दे विल बैंड। आपके जो एनर्जी बैंड है उनकी बैंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दे विल बैंड लाइक दिस। पहले आपके स्ट्रेट बैंड थे, अब उनकी बैंडिंग हो गई इस तरह से, वो इस तरह से बैंड हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो रीजन बनेगा, दिस रीजन इज द डिप्लीशन रीजन। और जो डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, ई वी नॉट दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल माइनस वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन के अंदर जो बैरियर पोटेंशियल होगा, वी नोट दैट इज द डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। राइट। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द शॉटकी बैरियर। Now we will discuss forward and reverse biasing of this Schottky junction। कि Schottky junction को फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट में कैसे यूज करेंगे और रिवर्स बायस अरेंजमेंट में हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आई टोल्ड यू दैट इट इज अ काइंड ऑफ पी एन जंक्शन। जैसे हमने पी एन जंक्शन के अंदर अरेंजमेंट किया था, वैसे ही हमने Schottky जंक्शन के अंदर, Schottky एमएस जंक्शन के अंदर करना है। तो नाउ वी विल डिस्कस कि तो ये वाला जो डायग्राम है, पहला डायग्राम, दिस इज बिफोर द जंक्शन, और यहाँ पे ये फर्मी लेवल एक ही लाइन में आ गए, तो दिस इज अ डायग्राम आफ्टर द जंक्शन, कि यहाँ पे हमारा जंक्शन फॉर्म हो गया। नाउ वी विल डिस्कस forward biasing of MS Schottky junction। Schottky junction, Schottky junction को हम फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग, कल भी हमने सरप्राइज क्विज में मैंने क्वेश्चन पूछा था। बायसिंग मींस वी विल अप्लाई एन एक्सटर्नल वोल्टेज, कि जो जंक्शन बन जाएगा उसको हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और हाउ टू कनेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है इन द फॉरवर्ड बायसिंग। जो आपका एक्सटर्नल बैटरी, जो हम एक्सटर्नल बैटरी को यूज करेंगे, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल
will be connect to metal, और जो नेगेटिव टर्मिनल will be connecting to the semiconductor. That will be connecting to the semiconductor. Then you will say कि this arrangement is the forward biasing arrangement of Schottky junction. कि जो इसका मेटल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो सेमीकंडक्टर होगा उसको we will connect to the negative terminal of the battery. राइट तो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हाउ इट विल बी, तो इस डायग्राम को मैं इरेज कर रही हूँ. ये हमारा मेटल है एंड दिस इज योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, डिप्लीशन रीजन दैट इज पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव. राइट अब इसको हमने, इस अरेंजमेंट को हमने किससे कनेक्ट कर देना, बैटरी से कनेक्ट करना है. कि मेटल को कनेक्ट करना पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इसको मैंने क्या कहा, वोल्टेज V. तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग अरेंजमेंट. यहाँ पे भी एक पोटेंशियल, यहाँ पे भी एक वोल्टेज होगी नेगेटिव पॉजिटिव, और वो वोल्टेज हमारी क्या है, V नॉट. दैट इज अ बैरियर वोल्टेज. पोटेंशियल बैरियर है ना यहाँ पे. व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मैंने अभी बताया था कि इट विल अपोज द फर्दर मूवमेंट, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उनका अपोज करेगा कि दे कैन नॉट मूव फर्दर. पोटेंशियल बैरियर. तो यहाँ से व्हाट यू कैन सी इन द फॉरवर्ड बायसिंग अरेंजमेंट, जो आपका दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज एंड दिस इज द पोटेंशियल वोल्टेज. तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव. तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. राइट जब हमने एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो वी विल सी कि आपका जो एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट इज अपोजिट टू दिस पोटेंशियल बैरियर. राइट तो आपका क्या होगा, बोथ V नॉट एंड V both opposed to each other, both opposed to each other. एक दूसरे का अपोज करेंगे. एंड ट्राई टू, इसका रोल क्या था कि ये क्या कर रहा था कि फर्दर मूवमेंट को जाने नहीं दे रहा था. तो ये उस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था. बट ये क्या करेगा, जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग दी तो ये इसको अपोज कर रहा है कि जो ये काम कर रहा था उसको रोक रहा है कि ऐसा काम ना करे. तो व्हाट विल हैपन कि आपका जो कांटेक्ट पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. जो आपका एक्सटर्नल वोल्टेज है V वोल्टेज, ट्राई टू रिड्यूस the function of V नॉट. V नॉट का जो फंक्शन था उस फंक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. ये उस चीज को डिक्रीज करना चाह रहा है तो ये वोल्टेज लगाने से वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और जैसे हमारा इसके फंक्शन को रिड्यूस करेगा, जैसे हमारा कॉन्टेक्ट पोटेंशियल रिमूव हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन कि देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि ये जो बैरियर था, जो यहाँ पे बैरियर बन गया था, वो क्या कर रहा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाए. लेकिन जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल बैरियर, बाहर हमने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, तो व्हाट विल हैपन कि आपका जो एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से जो ये बैरियर बना था वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा. उसका जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा. और जैसे इसका इफेक्ट नेग्लेक्ट होगा तो देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सेमीकंडक्टर टू मेटल. तो जैसे लार्ज फ्लो होगा करंट इलेक्ट्रॉन का, मींस देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ करंट. तो व्हाट डज इट मीन कि जैसे ही इसके वर्क फंक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, मींस देयर इज अ लार्ज फ्लो
large flow of electron from semiconductor to metal. सेमीकंडक्टर टू मेटल, यहाँ पे बहुत सारा करंट फ्लो होगा और जैसे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मींस देयर इज अ लार्ज करंट इन फॉरवर्ड बाइसिंग अरेंजमेंट, और फॉरवर्ड बाइसिंग का अगर हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी लाइक दिस कि दिस इज अ वोल्टेज एंड दिस इज अ करंट, कि देयर इज अ लार्ज इंक्रीज ऑफ द करंट, दिस इज अ VI कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था, सेम प्रोसीजर हमारा यहाँ पे शॉटकी जंक्शन का इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शॉटकी जंक्शन है इट इज अ काइंड ऑफ पीएन जंक्शन, राइट। तो जो हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में जो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द शॉटकी जंक्शन। इसी तरह का हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स मिला था और हमने कनेक्शन भी ऐसे किए थे कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को हमने सेमीकंडक्टर के नेगेटिव से कनेक्ट किया था, राइट। और यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर, जो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट विल अपोज द पोटेंशियल बैरियर, उस पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा और अपोज करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका पोटेंशियल बैरियर एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका पोटेंशियल बैरियर एलिमिनेट होगा तो देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरी गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज करंट। So you can say in the case of forward biasing of Schottky junction there is a large flow of current. Forward biasing के अंदर हमें क्या मिलेगा? Large magnitude of current मिलेगा, right? उसके बाद है हमारा reverse biasing. तो रिवर्स बाइसिंग का केस इसके अपोजिट हो जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे पॉजिटिव की जगह हमने बैटरी के कनेक्शन को चेंज करना, दैट इज मेटल विल बी कनेक्टिंग टू द नेगेटिव साइड एंड इट विल बी कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव साइड। हियर मेटल, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस एक्सटर्नल बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टिंग टू द मेटल एंड पॉजिटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टिंग टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। कनेक्शन हमने रिवर्स कर दिया है। तो ये अरेंजमेंट किसके? दिस इज अरेंजमेंट फॉर द रिवर्स बाइसिंग। ये हमने बैटरी को कैसे लगाया? लाइक दिस। तो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे आप देखो, इसमें मैम पोटेंशियल बैरियर चेंज नहीं होंगे? पोटेंशियल बैरियर का तो सेम रहेगा, वो तो हमारा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्रिएट हो गया है। हम तो एक्सटर्नल बैटरी हमारे हाथ में है, ये तो हमारा जंक्शन फॉर्म हो चुका है, वो तो एज इट इज रहेगा। अब हम बाहर से कुछ एक्सटर्नली कुछ दे रहे हैं तो वो हमारे हाथ में कि जो हम एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं उसके कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, राइट। ये तो हमारा क्रिएट हो चुका है। पोटेंशियल बैरियर तो दोनों अरेंजमेंट में सेम ही रहेगा। हमें ये देखना कि पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रहा है या उसका अपोज कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल बैरियर कैसे बना हुआ है? इस तरह से बना हुआ है, और हमारी एक्सटर्नल बैटरी भी ऐसे ही बनी हुई है। नेगेटिव साइड है, इधर भी नेगेटिव साइड है, इधर पॉजिटिव साइड है, इधर भी पॉजिटिव साइड है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अब सपोर्ट करेंगे। पहले अगर हमने देखा था तो यहाँ पे क्या बना था, किस तरह का बैटरी कनेक्शन था? इस तरह का। ये तो हमारी एक्सटर्नल बैटरी, ये हमारी इमेजिनरी बैटरी है। ये बैटरी, ये बैरियर हमारा क्यों बना है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जनरेट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए इस केस के फॉरवर्ड बायस के अंदर तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था, तो एक दूसरे का अपोज कर रहे थे। लेकिन रिवर्स बाइसिंग के अंदर दे विल सपोर्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के टर्मिनल सेम डायरेक्शन में है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। तो व्हाट यू विल राइट कि यहाँ पे V नोट एंड V बोथ सपोर्ट टू ईच अदर, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। दे विल सपोर्ट टू ईच अदर। तो अगर ये सपोर्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? ये क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा था कि और इलेक्ट्रॉन इधर ना जा पाए। अब इसको और भी सपोर्ट मिल गया है, हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है, तो इसको और सपोर्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल ही रुक जाएगा, राइट। पहले ये क्या कर रहा था? अगर 10 इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था
तो अब इस बैटरी की वजह से ये सारे के सारे 50 के 50 इलेक्ट्रॉन जो जाना चाह रहे थे उन सभी को रोक देगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे तो देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ करंट और वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट। तो व्हाट यू कैन से कि देयर इज अ वेरी स्मॉल फ्लो ऑफ करंट, वेरी स्मॉल, बिकॉज उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, सपोर्ट किया है। तो V जो हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज है, इट ट्राइज टू रिड्यूस की जगह उसके फंक्शन को क्या करेगी, ट्राइज टू इम्प्रूव। पहले तो ये एक्सटर्नल बैटरी इसके फंक्शन को रोक रही थी इसका अपोज कर रही थी, बट अब इसको सपोर्ट करिए तो इसके फंक्शन को क्या करिए, सपोर्ट करिए तो इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करेगी कि और अच्छा काम करो। तो ये ट्राइज टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ V नोट, और जब इसके फंक्शन को इम्प्रूव करेगी तो इसका फंक्शन क्या था कि फर्दर मूवमेंट को रोक रहा था। तो मीन्स देयर इज अ वेरी स्मॉल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ very small current will flow, small current will flow in the reverse bias, in the reverse bias, or you can say negligible current। फॉरवर्ड बायसिंग में तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था क्योंकि दोनों के दोनों ये हमारे एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, लेकिन रिवर्स बायस में ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा। तो वी विल गेट द नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो इफ वी ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स तो इट विल बी लाइक दिस, जैसे हमने तो इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और यही हमने किस में देखा था, पीएन जंक्शन डायोड में भी तो इसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया था कि दिस इज फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग अरेंजमेंट एंड दिस इज फॉर द रिवर्स बायसिंग अरेंजमेंट। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। मैम डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट होगा? सॉरी, क्या आप पूछ रहे हो? डिप्लेशन रीजन पे क्या इफेक्ट होगा? डिप्लीशन रीजन वही, एक में वाइड हो जाएगा एक में नैरो हो जाएगा, सिमिलर टू पीएन जंक्शन। ओके। कि उस केस के अंदर तो हमारा अपोज हो रहा था तो वो नैरो हो जाएगा, और जब हमें इसको सपोर्ट मिलेगा तो इट बिकम वाइड, बिकॉज आपका जो शॉर्ट की जंक्शन इट इज अ काइंड ऑफ पीएन जंक्शन। अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट उसके अंदर ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ पे नेग्लिजिबल करंट है तो माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से कि अगर हमारा फॉरवर्ड बायसिंग अरेंजमेंट हुआ, अगर हमने उस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो करंट पास हुआ, करंट कंडक्ट हुआ, और अगर उसको रिवर्स बायस कर दिया तो व्हाट डज, देयर इज नो करंट और वेरी स्मॉल करंट। इसी तरह का तो अरेंजमेंट हमें मिला है। तो वर्ड अगर मैं इसका आउटपुट ड्रॉ करना चाहूँ तो एक बार तो हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है, फिर हमारा करंट जीरो हो जा रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। इसी तरह का तो अगर मैं थोड़ा कॉमन सेंस के लिए अगर हम करें तो एक बार तो हमें करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है फॉरवर्ड बायसिंग में, फिर जीरो हो जा रही है, फिर फॉरवर्ड हुआ मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ मैक्सिमम, जीरो। मींस फॉरवर्ड बायसिंग में हमें करंट मिल रहा है और जैसे उसको रिवर्स बायस करेंगे तो देयर इज नो करंट। तो ये जो इस तरह का जो फंक्शन होता है दैट इज काइंड ऑफ रेक्टिफायर। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और डू नॉट कंडक्ट, तो इट इज अ काइंड ऑफ रेक्टिफायर। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो शॉर्ट की जंक्शन है इट एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है फॉर योर कंपटीशन एग्जाम या फिर इंटरव्यूज में कि आपका जो रेक्टिफाइंग जंक्शन कौन सा होता है, रेक्टिफायर की तरह कौन सा जंक्शन बिहेव करेगा। रेक्टिफायर का मतलब हो कि एक बार मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट देखोगे तो इट इज लाइक दिस कि एक बार हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फिर मिनिमम, तो यहाँ पे इसी तरह की आउटपुट मिल रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रेक्टिफायर। तो व्हाट यू कैन से कि आपका जो शॉर्ट की जंक्शन है, शॉर्ट की जंक्शन it is a kind of rectifier, it works as a rectifier, रेक्टिफायर की तरह
rectify ki it will work as a rectifier, right? So this is all about the Schottky junction, Schottky metal semiconductor junction, right? So in the next class we will discuss about the ohmic metal semiconductor junction, और वो बिल्कुल रिवर्स होगा टू दिस Schottky जंक्शन. तो इट्स बेटर कि एक बार जो आज ये रिकॉर्डिंग है अगर आपको मिल जाती है तो इन द इवनिंग एक बार आप इसको बैठ के रिवाइज करिए, सो दैट व्हेन यू विल कम इनटू द नेक्स्ट क्लास यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ठीक है ना? क्योंकि उसका जो हमने यहाँ पे किया उसका बिल्कुल रिवर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज अबाउट द ohmic conduct, राइट? तो आई थिंक आज के लिए इतना ही. तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.